علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے لکھا کہ علی کے لال محمد کے چہر زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، اور ہے جس کا پاک خون بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ آہا کیا کہنا حضرت، بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حسین زندہ باد۔ بے شک مولا حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک سبحان آج اللہ۔ ہم آپ ذکر امام حسین کرنے کے لیے، ذکر شہداء کربلا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں، اور اس حوالے سے بڑی ساری باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں نے اس پر مقدمہ رکھا کہ میں بحث کروں، وہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور اس حوالے سے اور اس کے تمام تر جو اس سے باتیں نکلی وہ آپ نے غالباً اپنے خطیب و امام سے سن ہی لیا ہے۔ امام حسین کے حوالے سے کہ وہ شہید ہوئے، آپ نے قاری محمد عیسیٰ صاحب قبلہ سے سماعت کر لیا ہے۔ دیکھیں سنیں، ایک مرتبہ ایڈوانس میں بول دیں، یا حسین یا حسین۔ خالد ناظم صاحب اکیلے بولے ہیں، باقی آپ میں سے بہت کم بولے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ بول دیں مل کر، یا حسین یا حسین، ماشاءاللہ بہت ہوائیں چل رہی تھی، زمین پر آسمان آگ اگل رہا تھا، یعنی کہ سورج اپنے شعاؤں کو تیزی سے زمین پر بکھیرے ہوا تھا۔ پتھریلی زمینیں اور اس کے ذرات ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ وقتوں میں وہ آگ کہ اچانک ایک قافلہ نمودار ہوا۔ اس قافلے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے ہیں، اڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بغل ہی میں پانی بھرا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھے تو ان کو آواز دی گئی کہ اپنے دل دماغ نظروں کو قابو میں کر لو، کیونکہ وہ جو درخت کے نیچے عورت بیٹھی ہے وہ ایسے ہی کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے۔ وہ قریب آئے، ابھی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی عورت اور اس کی گود میں وہ بچہ۔ وہ قریب آئے، وہیں پر اپنے خیمے کو لگاتے ہیں، کٹیا بناتے ہیں، اور پھر دو لوگ جو وہاں پر موجود تھے، ایک وہ عورت اور بچہ، پھر ایک قافلے والے ٹھہرے، ایک پروا بنا، ایک گاؤں بنا، وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس بیٹے کا باپ یعنی اس لڑکے کا باپ واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے خاتون اسے تیار کر دو، میں اپنے بیٹے کو دعوت میں لے کر جا رہا ہوں۔ المختصر کہانی آپ سماعت کر چکے ہوں گے، سنے ہوں گے، ابراہیم علیہ نبینا کے حوالے سے لے کر گئے، قربانی کرتے ہیں۔ اسماعیل کی گردن کو تو چھری نہ کاٹ سکی، پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ واپس آتے ہیں، وقت گزرتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد وہی ابراہیم علیہ نبینا پلٹ کر پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے چلو ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے لگتے ہیں، خانہ کعبہ کو بنانے لگتے ہیں۔ وقت لڑائی رہتی ہے، تاریخ اپنے پنوں کو پلٹتا ہے، دن گزرتے گئے۔ اسی گروہ سے، اسی جو چند اس قبیلے میں جو چند لوگ آئے تھے، وہ بڑھتے گئے، عبد مناف ہاشم سے ہوتے ہوئے عبد المطلب، اور پھر ان کے بیٹے آئے۔ عبد المطلب کے حوالے سے کہ وہ منت ایک مانے تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ المختصر یہ کہ جب انہوں نے اس کا ارادہ کیا اور قرآن اندازی کی تو اس میں عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے، راہ خدا میں کاٹنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں۔ چند وجہوں سے یہ بات سامنے آئی کہ عبداللہ کو نہیں بلکہ کسی اور کو، پھر دوبارہ کیا گیا، دوبارہ تیسری مرتبہ جب کیا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ آخری فیصلہ یہ لیا گیا کہ ان کے جان کے بدلے کچھ جانوروں کو قربان کیا جائے اور انہیں رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیں اس ریگستان پر ایک عورت بیٹھی تھی، ان ذرات کے بیچ میں، ان گرم ہواؤں کے بیچ میں، اور آج یہ حال، آج جہاں آج شہر مدینہ قائم ہے، جہاں آج مکہ ہے، جہاں پر ہم اور آپ
حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر اسی خاندان سے ہوتے ہوئے میں نے کہا نا ہاشم عبد مناف عبد المطلب سے ہوتے ہوئے عبداللہ، پھر عبداللہ کی شادی آمنہ سے، اور آمنہ کے بطن پاک سے 12 ربیع النور شریف سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں صحابہ کے بیچ میں کہ آپ جانتے ہو میں 2 ذبیحوں سے ہوں. ایک وہ جو باپ نے بیٹے کے گردن پر چھری کو رکھ دیا تھا ابراہیم علیہ نبی علیہ نے اسماعیل کے گردن پر، اور دوسری مرتبہ وہ کہ جب میرے باپ کا نام نکلا تھا کہ اب ان کو راہ خدا میں ذبح کیا جائے، اب ان کو قربان کیا جائے. اے صحابہ میں 2 ذبیحوں سے ہوں. بات آگے بڑھتی ہے. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو اسماعیل میں تھا تب ان کو بچایا گیا، وہی نور عبداللہ میں آیا، پھر عبداللہ کو بچایا گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خلیفۃ کبریٰ آتی ہے. ایک بات دیگر بیٹیوں کے بعد میں پھر آپ کا وہ نور فاطمہ الزہرا کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے. وقت گزرنے کے بعد ایک دن وہ بھی آیا کہ جب فاطمہ الزہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، علی جو آپ کے شوہر ہیں فاطمہ الزہرا کے، لا کر مصطفیٰ کی گود میں رکھتے ہیں اور مصطفیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نواسا ہے. نبی پوچھتے ہیں بتاؤ نام کیا رکھے ہو؟ واقعہ یوں ہے کہ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبارکبادی پیش کی ہے اور اس بیٹے کا نام شبر رکھا ہے. پھر 6 مہینے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر علی نے ایسا ہی کیا. پھر جبریل امین آتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے مبارکبادی پیش کی ہے، اس کا نام شبیر رکھا ہے. یہ دونوں پلنے بڑھنے لگے. وقت پھر آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا اے محمد بن عبداللہ اب اپنے نبوت کا اعلان کر دو، جاؤ اپنی نبوت کا اعلان کرو، بتاؤ کہ میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ ہوں. مصطفیٰ ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اے مکہ والوں قریب آ جاؤ، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ. لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں بتاؤ کیا میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا اے محمد تم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اے محمد تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، اے محمد بن عبداللہ تم سے زیادہ صادق کوئی نہیں، امین کوئی نہیں، بہتر کوئی نہیں، افضل کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ نے جب ان تمام باتوں کو سنا تو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اب توجہ سے سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم نے یہ مان لیا کہ میں سچا ہوں، اچھا ہوں، نیک ہوں، ایماندار ہوں تو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو. نبی فرماتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے یہ جانا کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، ابھی تک آپ نے یہ جانا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، لیکن اب یہ جانو کہ میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ ہوں. اس بات کو کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. آؤ قریب آؤ، اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو بلند کر دو. آؤ قریب آؤ، اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رکھ دو. وہی لوگ جو ابھی تک سامنے کھڑے تھے نبی کی باتوں کو سن رہے تھے ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ جو تم نے کہا ہے اس سے پھر جاؤ، پلٹ جاؤ. جو تم نے کہا ہے کہہ دو یہ جھوٹ ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کہا تو ہم تمہیں اتنا پتھر ماریں گے کہ تم اپنے گھر تک نہیں پہنچ پاؤ گے. مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہوا ہے کہ میں اعلان کر دوں. میں نے اعلان کر دیا کہ میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ ہوں. اب ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہ مانو، پتھر چلانا ہے چلا لو، لیکن میں نے جو اعلان کر دیا یہ سچ ہے. جب اتنا کہا وہ پتھر لے کر آگے بڑھنے لگے اور مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہی تب تک 9 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ، تقریباً 9 یا 8 سال کا ایک بچہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے محمد بن عبداللہ کوئی مانے نہ مانے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، میں علی مانتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی ہو، میں مانتا ہوں. علی آگے بڑھے اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ میں مانتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. جب علی آگے بڑھے تو وہی کفار مکہ جو سامنے پتھر لے کر کھڑے تھے کہنے لگے اے علی تو جانتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، تو جانتا ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے، تو جانتا ہے کہ تو نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ کو رکھا، تو نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کو رکھ دیا ہے جس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، جب ایک خدا کی عبادت کے لیے کہے گا تو دوسرے خداؤں کو جھوٹا کہے گا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہے گا. اے علی تو پلٹ جا ورنہ تو جانتا نہیں ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا. علی نے شاید کچھ یوں جواب دیا ہوگا کہ اے مکہ کے لوگوں تم یہ پوچھتے ہو کہ علی آگے آ گیا ہے تو اب علی پیچھے ہٹ جائے. علی نے مصطفیٰ کے کہنے پر جب مصطفیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے تصدیق کر لیا، مان لیا، میں نے ہاتھ دے دیا، پلٹنے والوں میں سے نہیں. تو کفار مکہ نے کچھ یوں کہا کہ اے
अली तू जानता नहीं कि ये हाथ लेने देने का मतलब क्या है, तू समझ नहीं पाया इस फलसफे को कि जो तू हाथ दे रहा है इसका मतलब क्या है। अली ने कुछ यूं जवाब दिया होगा कि मैं सब कुछ समझ गया। अगर नबी कहेंगे बिस्तर मर्ग पर सोने के लिए जब नदवा में बैठकर मीटिंग की गई होगी कि आज रात मुस्तफा के बिस्तर पर हमला किया जाए, तो अली हाथ दे दिया है, अब मुस्तफा के बिस्तर पे ये सोएगा भी। अगर जरूरत पड़ी तो नबी हुक्म देंगे तो खैबर के दरवाजे को उखाड़ेगा अली। अगर जरूरत पड़ी, अगर आज तुमने मुस्तफा को पत्थर मारा, अगर आज तुम पत्थर मारोगे तो अली अपना सीना आगे कर देगा। वो कहने लगे शायद तू अभी भी मतलब को नहीं समझ पाया, यही तक बात नहीं है। अगर तू हाथ लेने देने का मतलब समझ जाता तो शायद आज मोहम्मद के हाथ में तू हाथ को न रखता। अली ने निगाह मुस्तफा को देखा, अली ने मुस्तफा की आंखों में आंखें डालकर बारगाह खुदा में कुछ यूं कहा कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, आज जब तेरे नबी ने ऐलान किया है, आज जब मुस्तफा ने ऐलान किया अपनी नबूवत का और कहा कि ऐ लोगों मुझे अल्लाह का नबी मानो, तब जब कोई आगे ना बढ़ा मैंने अपना हाथ दे दिया है। तो ये मक्का वाले, ये बड़े बड़े आतंकवादी जो सामने खड़े हैं, ये मुझे हाथ लेने देने का फलसफा बता रहे हैं, मुझे हाथ लेने देने का मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब भी हाथ लेने और देने की बात आए, जब कभी हाथ दिया जाए या हाथ मांगा जाए तो इसे मेरे ही खानदान में, मेरे ही खून में बाकी रखना। अली का ये कहना हुआ, आप देखें कि उस अली के कहे हुए उस बात के असर को आप देखें कि वहां पर अली ने पहले हाथ दिया तो कुफारे मक्का पत्थर लेकर खड़े थे। यहाँ मुस्तफा के नवा से यानी कि अली के बेटे से हाथ मांगने की, हाथ लेने की बात आई तो अली का बेटा हुसैन करबला में डटा खड़ा रहा और कहने लगा बाबा जान ने वहां हाथ को देकर कहा था कि हम तुम पत्थर मारोगे, फिर भी अली हाथ मुस्तफा के हाथ से हटाएगा नहीं। करबला में हुसैन खड़े यही बता रहे थे, अब ये हुसैन अपना हाथ देगा नहीं, अब हाथ दोबारा तुम्हारे नापाक हाथ में देगा नहीं। वहां पर बाबा को पत्थर मारा गया था, यहाँ चाहे पूरा खानदान लुटा दिया जाए और मेरे सर को काट दिया जाए, फिर भी अपने हाथ को मैं जाने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, जश्न शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये पाक हाथ किसी नापाक हाथ में जाएगा नहीं। बाबा ने बहुत पहले वादा कर लिया, वक्त गुजरा फातिमा ज़हरा के और अली के बीच से इस रिश्ते को हसन और हुसैन की विलादत हुई, जैसा कि मैंने कह दिया है। मुख्तसर में यूं समझे आप कि ये बच्चे अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिन्हें हम और आप हसन और हुसैन कहते हैं। वक्त गुजरता गया। आज करबला के हवाले से उलमा इकराम बयान करते हैं तो कहने वाले कुछ लोग ये कह देते हैं कि इमाम हुसैन करबला में जंग हारे हैं, इमाम हुसैन करबला में लड़ाई हारे हैं, ऐसी बड़ी सारी बात है, लेकिन ये गलत है। इमाम हुसैन लड़ने नहीं गए थे, ये आप भी जानते हैं। उलमा इकराम आपको अच्छे अंदाज में बताए भी होंगे तकरीर में भी, शाम से लेकर अब तक, कि इमाम हुसैन करबला में जंग करने नहीं गए थे। और सच्चाई ये है कि अगर करबला में जंग करने जाते तो फिर वो यजीदी क्या है, अगर तमाम तर पहलवान जो बड़े बड़े जंगजू हैं सब करबला में एक साथ उतर जाते हुसैन के मुकाबले में तो हुसैन को हरा नहीं पाया। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप सुने। नबी पाक है, नबी पाक हसन और हुसैन को इकट्ठा करते हैं, करने के बाद कहते हैं बेटो इधर आओ। जब दोनों शहजादे इकट्ठा हुए तो नबी फरमाते हैं कि चलो बेटा कुश्ती करो, दोनों फाइट करो, लड़ो। वाकया बहुत मशहूर है, सुने होंगे आप। हसन और हुसैन लड़ना शुरू करते हैं, हसन और हुसैन लड़ने लगे, तब तक नबी पाक हमारे और आपके प्यारे नबी बोल पड़े, अरे बेटा हसन तुम ऐसा करो, हुसैन के गर्दन को पकड़ो और ऐसे गिरा दो। कुछ देर के बाद फिर फरमाते हैं कि हुसैन को ऐसे पकड़ के ऐसे गिरा दो। यानी नबी पाक हसन को बार बार बता रहे हैं लड़ने का तरीका, सिखा रहे हैं जीतने का तरीका। फातिमा ज़हरा अंदर खड़ी है, माँ की ममता, माँ बेचैन होती है। फातिमा ज़हरा बाहर निकलती है, कहती है बाबा हुजूर मैं देख रही हूँ कि हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, लेकिन आप इतनी देर से हसन को ही सब बता रहे हैं कैसे लड़ा जाए, कैसे गिराया जाए, कैसे जीता जाए, आप हुसैन को नहीं बता रहे हैं, जबकि हक ये है कि हुसैन को बताना चाहिए। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। जब मैंने अपने हसन और हुसैन को इकट्ठा किया लड़ने के लिए, कुश्ती के लिए, फाइट के लिए, तब अल्लाह फरमाता जिब्रील से, जिब्रील जाओ जमीन पर देखो मेरे नबी के नवासे हसन और हुसैन लड़ने जा रहे हैं, कुश्ती करने जा रहे हैं। हुसैन जाओ
जिब्रील जाओ और हुसैन की तरफ खड़े होकर हुसैन को लड़ने का तरीका सिखा दो, हुसैन को जीतने का मंसूबा बता दो, हुसैन को जीतने का तरीका सिखा के आओ, फाइट करने का अंदाज बता के आओ। ऐ मेरी बेटी फातिमा, हुसैन को सिखाने के लिए जिब्रील आए हैं, तो हसन को मैं बता रहा हूं कि तुम ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। अब आप फैसला करो कि जिसे सिखाने के लिए, जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, फाइट करने का तरीका बताने के लिए जिब्रील जैसा फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो, क्या दुनिया के ये यजीदी इमाम हुसैन को हरा सकते थे? जिसे सिखाने के लिए खुद फरिश्ता आया हो चलकर, फरिश्ता जब आसमान का फरिश्ता सिखाने आए तो जमीन वालों की क्या मजाल कि उस हुसैन को हरा देते। वो तो हुसैन अपने सब्र को दिखाने के लिए, नाना जान के दीन की पासबानी करने के लिए राह खुदा में अपने सर की कुर्बानी दे दिए, अपने जान की कुर्बानी दे दिए, अपने सर को निछावर कर दिए, वरना क्या मजाल थी कि वो हरा पाते। वक्त गुजरता गया। आप इमाम हुसैन के बचपने के हवाले से वाकया सुन चुके होंगे कि रात के ढाई या पौने 3 के करीब है वक्त, आप जान रहे हैं, इस बात को सुन चुके होंगे कि कभी नबी ने हुसैन के लिए अपने सज्जे को तूल दिया, कभी अपने कंधे पर बिठाया, कभी उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह सवारी कितनी अच्छी है, तो कभी और बड़े सारे वाकयात आप सुन चुके होंगे। मजीद वक्त गुजरता गया। वो हसन और हुसैन कि जिनके नाना अपने मज़ार के अंदर, कब्र के अंदर आराम फरमा है, फातिमा ज़हरा अपने कब्र के अंदर है, हज़रत हसन अपने कब्र के अंदर है, ये तमाम पर चले गए। वक्त गुजरता गया। सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हसन अमीर मुआविया के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ। आप ये भी सुन चुके होंगे वाक़यात के हवाले से कि कूफा से मुसलसल खतूत आते रहे। तकरीबन एक किताब के हवाले से 40 और एक के 60 और एक किताब के हवाले से तकरीबन 150 खतूत आए कूफा से, जिसका मतलब विषय ये था, असल जिसमें मजमून था वो ये था कि हुसैन अगर तुम ना आए तो हम तुम्हारे नाना जान से ये कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके नवासे को बुलाया था लेकिन ये ना आए तो हम क्या करते, इसलिए आपको आना चाहिए। हुसैन तैयारी करते हैं वाक़यात के हवाले से, जो दास्तान करबला आप सुनते हैं, उस हवाले से, किताबों के हवाले से पहले ये बात तय की गई कि मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। वो निकले, उनके 2 बच्चे निकलते हैं। मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पहुंचे तो लोग इस्तकबाल करते हैं। कुछ दिनों के बाद में उनकी शहादत हो जाती है। फिर आपके दोनों बच्चे वहाँ से निकलते हैं। उनको एक कोतवाल निकालने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये मदीना पहुंच जाए, लेकिन जो मंजूर खुदा वही रास्ते में उनको भी पकड़ा गया और वो भी शहीद कर दिए जाते हैं। तारीख फिर आगे बढ़ती है। इधर मुस्लिम बिन अकील खत लिख देते हैं, या रसूल, या हुसैन आप आ जाएं, यहाँ का माहौल अच्छा है। हुसैन, अभी आपने कारी ईसा साहब की ज़बानी सुना कि नबी पाक के कब्र अनवर पर जाते हैं, ऐ नाना जान, मैं सलाम करने आया हूँ, जा रहा हूँ, मुझे अब वो वक्त आ चुका है कि जिसके लिए मेरी परवरिश की गई है। मैं जा रहा हूँ करबला की तरफ। अपनी माँ को सलाम किया, बाबा को, अपने भाई को सलाम किया, अपने नाना जान के कब्र पर जाते हैं। आग लगी, ख्वाब देखा, मुस्तफ़ा आए, तमाम तर वाक़यात। अल-मुख्तसर नबी पाक के नवासे इमाम हुसैन करबला की तरफ रवागवा है। मारिया नैनवा की तरफ आप निकले हैं सफर पर। आपने उलमा के ज़बानी ये भी सुना होगा कि उस मुबारक महीने में निकले हैं जिस महीने में लोग जिंदगी भर की दुआएं एक साथ रखकर यूं कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात की मौला तेरी रहमत बरसती है। इस इबादत के लिए लोग जिंदगी भर दुआएं करते हैं। इस मुबारक महीने में इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ, अपने खानदान के साथ तकरीबन 72 या 82 या 69 लोगों का ये छोटा सा काफिला, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। ये काफिला छोटा सा निकल कर जा रहा है। इधर देखें आप, दुनिया के कोने कोने से लोग हज करने के लिए इधर आ रहे हैं और हुसैन उसके बरअक्स यानी उल्टा कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, कहीं शाम, कहीं यमन, कहीं इराक, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के हर कोने से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। चलो चलो तवाफ़े काबा करेंगे। एक हाजी है जिसने देखा हुसैन को और पहचान गया कि ये हुसैन ही है, ये हुसैन इब्ने अली हैं। वो ठहरा और ठहरने के बाद यूं कहता है कि क्या आप हुसैन इब्ने अली हैं? आप फरमाते हैं हाँ मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? इससे अच्छा मौका अब कब मिलेगा? ये हज का, इस वक्त लोग हज करने के लिए आपके दरवाजे पर आए हैं, लोग हज करने के लिए काबा आए हैं, लोग हज करने के लिए सफा मरवा पर दौड़ेंगे, लोग हज पढ़ने के लिए यहाँ पर संज्ञा समत को चूमेंगे, इन अरकान को पूरा करेंगे और तुम इस माहौल में, इस वक्त में, इस महीने में इसे छोड़कर जा रहे हो। शायद इमाम हुसैन ने कुछ यूं जवाब दिया होगा जिसे मैं अपनी जबान में, अपने अंदाज में, अपनी जबान में पेश कर रहा हूँ। उस हाजी ने कहा होगा, ऐ हुसैन
کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانا ہی ہے تو آپ اس کے علاوہ ادر مہینوں میں چلے جانا، آپ ربیع الاول میں چلے جانا، ربیع الاخر میں چلے جانا، جمادی الاول میں چلے جانا، جمادی الاخر میں چلے جانا، رجب شعبان رمضان میں چلے جانا، ابھی نہ جائیں، یہ وہ وقت ہے کہ لوگ آ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں۔ حسین نے کچھ یوں کہا ہوگا کہ اے حاجی تو کیا جانتا ہے، میں اپنے زینب کو لے کر، شہروانوں کو لے کر، سکینہ کو لے کر، علی اکبر علی اصغر کو لے کر کیا میں پکنک پر نکلا ہوں؟ کیا میں ٹور پر جا رہا ہوں؟ کیا میں گھومنے جا رہا ہوں؟ اے حاجی اگر اس قافلے کو لے کر نکلا ہوں تو کسی اصل کام کے لیے ہی جا رہا ہوں، اگر تو عبادت کے لیے آیا ہے تو میں بھی کہیں عبادت کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ حاجی نے کچھ یوں پوچھا ہوگا کہ آخر اس مہینے میں اس عبادت سے بڑھ کر اور کون سی عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں؟ تو حسین نے کچھ یوں کہا ہوگا کہ اے حاجی تجھے معلوم نہیں ہے، اگر کچھ اس سے اہم ہے شاید تبھی میں نکلا ہوں، ورنہ نانا جان کے مزار کو چھوڑ کر میں نہ جاتا جس کے لیے اعلان ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ شاید میں اس وقت اسے چھوڑ کر نہ جاتا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، لوگ سعی اسود کو چوم رہے ہوں، لوگ صفا مروہ پر دوڑ رہے ہوں، میں اس وقت چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر جا رہا ہوں تو شاید کوئی اہم کام ہوگا۔ حاجی نے کہا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہے؟ حسین کچھ یوں کہے کہ اے حاجی اگر تو عبادت کرنے کے لیے مکہ آیا ہے تو سن میں تفریح کے لیے نہیں، میں بھی عبادت ہی کرنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اے حاجی سن اگر تو عبادت کرنے کے لیے یہاں آیا ہے تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو میں بھی جہاں جاؤں گا میں بھی وہاں پر طواف ہی کروں گا۔ تو یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، میں وہاں پر جا کر اپنے خیمے کا طواف کروں گا تاکہ شہر بانو زینب کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکوں۔ تو یہاں پر جا کر کے صفا مروہ پر دوڑے گا تاکہ اللہ کے رضا کو حاصل کرے، اللہ تجھے سربلندی عطا فرما دے۔ میں وہاں پر جانے کے بعد خیمے سے میدان تک دوڑوں گا تاکہ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو اٹھا لاؤں، کہیں پر جا کر پھر دوڑوں گا کہ جا کر اپنے بھائی کی نشانی قاسم کی جوانی کو اٹھا لاؤں، کہیں دوڑ کر جاؤں گا عباس کے کٹے ہوئے بازو کو لے کر آؤں۔ تو صفا سے مروہ پر دوڑے گا، مروہ سے صفا پر دوڑے گا، میں خیمے سے میدان تک جاؤں گا، میدان سے خیمے تک جاؤں گا، تو جا کر خانہ کعبہ کو گھومے گا، میں یہاں پر اپنے خیمے کو گھوموں گا، تو وہاں پر جا کر اسماعیل کے کھوتر سے نکلنے والے پانی کو پیے گا، یعنی کہ زمزم کو پیے گا۔ میں وہاں پر جاؤں گا، جب سکینہ کے ہونٹ سوکھیں گے نا تب میں پانی طلب کرنے جاؤں گا تو ہرملا اپنے نیزے کا وار کرے گا اور اس پانی کے بدلے میں خون چلو میں دے دے گا۔ اے حاجی جا اگر عبادت کرنے تو آیا ہے تو عبادت کرنے میں بھی جا رہا ہوں، جائے گا جتنے ارکان تو یہاں کرے گا میں وہاں کروں گا، بس جگہ بدلے گی، کچھ چیزیں بدل جائیں گی لیکن رکن ایسے ہی رہیں گے۔ دوڑے گا تو بھی، دوڑوں گا میں بھی، تو بھی طواف کرے گا میں بھی طواف کروں گا، پانی کے طلب میں تو زمزم پیے گا، پانی کے طلب میں پیاسا رہوں گا۔ جب تیری عبادت مکمل ہوگی تو تو اپنے سر کو جب تیری عبادت مکمل ہوگی تو تو مینا میں پہنچ کر ایک سفید چادر احرام کو اوڑھ کر اپنے سر کو چھلا دے گا۔ اے حاجی جب میری عبادت کربلا میں مکمل ہو جائے گی تو میں احرام کو نہیں کفن کو اوڑھے ہوئے اپنے سر کو کربلا میں کٹا دوں گا۔ دنیا حاجی کہے گی پوری دنیا میں شہید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حاجی جا مکمل کرے گا، لوگ تجھے حاجی کہیں گے، لیکن جب میں اپنی عبادت کو مکمل کر دوں گا کربلا میں تو لوگ مجھے شہید اعظم کہیں گے، جنتی جوان۔ کیا کہنا حضرت، بہت اچھا کہا ماشاءاللہ۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، تاریخ نے پھر اپنے پنوں کو پلٹا، وقت نے انگڑائی لی، وقت گزرتا گیا۔ وہ سفر میں بڑے سارے واقعات کیے جاتے ہیں، راستے میں امام حسین سے بڑی ساری کرامتیں بھی ہیں، کتابوں میں ذکر ہے المختصر۔ امام حسین کربلا میں پہنچے، آپ نے سنا کہ آپ نے اپنے بیٹے، بھانجے، بھتیجے و تمام تر 72 ساتھی یا تقریباً 69-71 ساتھیوں کو ایک بعد دیگر آپ نے جامع شہادت کو نوش کرتے ہوئے دیکھا۔ آخری وقت آیا، امام حسین جب کربلا کی طرف بڑھے، پھر آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے
यजीदियों इब्ने ज़ियाद है, शिमर है, खूली, अभी ठहर, अभी रुक जा, वक्त है, अब भी पलट जा, अभी रुक जा, क्योंकि अगर तू रुक रहा है तो मैं अली अकबर के खून को माफ कर रहा हूँ तुझ पर। अभी तू रुक रहा है, अली असगर के खून को माफ कर रहा हूँ, अभी तू रुक रहा है, अपने भाई की निशानी कासिम के खून को मैं माफ कर रहा हूँ, रुक जा, क्योंकि मुझ तक पहुँचने की कोशिश न कर। लेकिन वो जहन्नमी कुत्ते, इनकी निगाहों के सामने वो लालो जेवरात, वो रुपये पैसों का असर दिख रहा था, उसकी चादरें उनके निगाहों के सामने पड़ी थी, उन्हें कुछ दिखाई न दिया। इमाम हुसैन आखिरकार करबला में उतरते हैं, अली के उस तलवार को लिए हुए और कहते हैं क्या तुम मुझे पहचानते नहीं कि मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा था कि जानता हूँ कि तुम कौन हो, हुसैन इब्ने अली हो, यानी तुम शेर खुदा के बेटे हो, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे जिस्म में फातिमा का दूध है, ये भी जानता हूँ कि तुम अली के नबी के नवासे हो, ये भी जानते हैं हम कि तुमको मुस्तफ़ा ने अपने कंधों पर बिठाया है, तुम्हारे वजह से अपने सजदे को तूल दिया है। एक हदीस के हवाले से एक मरतबा नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे कहते हुसैन कहीं गए थे और वापस आते हैं तो आपके पैर में कुछ धूल के जर्रात लगे हुए थे। तो अबू हुरैरा जो बुजुर्ग सहाबी हैं, आप पहुंचते हैं और अपने रुमाल से या अपने कपड़े से इमाम हुसैन के पैर से उस मिट्टी को, धूल को साफ करने लगते हैं। पूछने वाले ने पूछा कि आप बुजुर्ग हैं और आपसे कई सारी हदीसें, आप कई हदीसों के रावी हैं और आप इतने मर्तबा के, आप मर्तबा में इतना आला है, आप उस हुसैन के, आप एक बच्चे के हुसैन के पैर को क्यों साफ कर रहे हैं? तो अबू हुरैरा ने जवाब दिया था कि तुमने ये देखा कि मैं बुजुर्ग हूँ, तुमने ये देखा कि मैं कई हदीसों का रावी हूँ, तुमने ये देखा कि मेरा मर्तबा आला है, मैं सहाबियों में आला पैमाने पर हूँ, मैं उनमें गिना जाता हूँ, हाँ बुजुर्ग हूँ, बड़ा हूँ, बढ़कर हूँ, ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं किसके पैर को साफ कर रहा हूँ, मैं उसके पैर को साफ कर रहा हूँ। मैं अबू हुरैरा सहाबी की क्या हैसियत है, नबियों का इमामुल अंबिया ने इन्हें अपने कंधों पर बिठा कर रखा था और कहा था कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत किया करो। ये है हुसैन, ये है हुसैन। वो हुसैन अपने करबला में खड़े हैं, उनके सामने कहते हैं अभी वक्त है, रुक जाओ, लेकिन वो रुके नहीं। बड़ी तेजी के साथ आखिरी बात बता दूं, रुके नहीं और फिर वो लोग इमाम हुसैन की शहादत के लिए तैयार हैं। वो वक्त आया कि आप लड़ते हुए, अब मौरखीन कुछ लिखते हैं कि आप जिधर मुड़ते थे अपने निजाम को एकदम मिटा कर रख देते थे, लोग कैसे कैसे कट रहे थे, बहुत सारे तरीके से इसे बयान किया गया। लेकिन एक बड़े आलिम से पूछा गया आप बताएं, तो उन्होंने कहा बस इतना जानता हूं कि करबला में एक वाकया हुआ जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए हैं और उनकी ताकत की क्या बात की जाए। हाँ ये बिल्कुल सच है कि इमाम हुसैन लड़े और तो लोगों को जहन्नम पहुंचाए। अल-मुख्तसर इमाम हुसैन अपने सर को सजदे में रखते हैं, ऐ शिमर रुक जा, आ नमाज पढ़ ले, ऐ खूली रुक, आ सजदे कर ले, लेकिन वो मना करते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तुम चाहते हो कि तुम्हें मोहलत दे दिया जाए, तुम फुर्सत में आ जाओ। अपने सर को रखते हैं बारगाह खुदा में, वो तैयार हुए, आओ सर को काटा जाए। एक बढ़ा आगे और आने के बाद में देखता है कि सर इमाम हुसैन को सजदे में है, लाओ तलवार रख दिया जाए। तब तक वो कांपने लगा, थर्राने लगा, वापस चला गया। जब इब्ने ज़ियाद ने उससे पूछा कि बदबख्त तू एक सर को नहीं काट सका जो कि इतने अच्छे अंदाज में पड़ा है कि जब चाहो तलवार आराम से रखकर खींच दो और कुछ भी नहीं, नजरें भी उसकी नीची हैं, हाथ भी रखे हुए हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तब उसने कहा था कि हाँ ये सब कुछ सच है, तलवार मेरी रंगी है, सर वो झुकाए हुआ है, निगाहें नीची हैं, बिल्कुल सच है। मैं चाहूँ तो एक वार में इस जिस्म से सर को अलग कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने तलवार को उठाया ना, मुझे ख्याल आया कि कभी मुस्तफ़ा इसी गर्दन को चूमे थे, कभी मुस्तफ़ा ने कहा था कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, कभी मुस्तफ़ा ने कहा था कि इनसे मोहब्बत किया करो, जो इनसे मोहब्बत करेगा उससे मैं मोहब्बत करूंगा और जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ उससे रब राजी होगा। मैं कैसे उस गर्दन को काट दूं जिसमें फातिमा का जन्नती दूध गुजरा है। तब उसने कहा कि तू डरपोक है, तू नाकारा है, तू निकम्मा है, तू डर रहा है, नहीं कर पाएगा। फिर उसने ऐलान किया, फिर उन्हीं दो कुत्तों में से कुत्ता आगे बढ़ा, नाम आपने सुना होगा खूली और शिमर का। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है, तुझ में हिम्मत नहीं है। अल-मुख्तसर वो वक्त आया कि इमाम हुसैन के गर्दन पर तलवार को रखकर खींच दिया गया। नबी के नवासे का वो सर जिस्म से अलग हो गया, जिस गले में कभी फातिमा का जन्नती दूध गुजरा करता था, जिसको कभी नबी चूमा करते थे, उस गर्दन को यजीदियों ने काटा। काटने के बाद उसमें नेज़े को डाला और डालने के बाद उसको बुलंद किया और फिर जश्न मनाने लगे, कहने लगे देखो देखो बागी के सर को काट डाला, देखो देखो मैंने इन्हें कुचल दिया। सर को उठाए हुए जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, खुशियों में झूम रहे हैं। तब तक वो ज़ैनब, वो मखदूमा ज़ैनब जो पीछे खड़ी थी, जब उनकी नजरें पड़ी इमाम हुसैन के सर पर, तो
इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे थे और आग नेज़े पर बुलंद होकर कुरान पढ़ रहे थे। वाकया जैसा कि भी आपने सुना है कि नेज़े पर आप कुरान पढ़ रहे थे। यजीदी हैरत में है कि आखिर कटा क्या है, आखिर कटा क्या है। जिसमें यहाँ पढ़ा है ये कुरान पढ़ रहा है, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर बोल रहा है, कुरान पढ़ रहा है और लोगों को बता रहा है हुसैन का सर कि ऐ लोगों देखो, जिसके सर को काटा था झुकाने के लिए आज भी हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद है। हुसैन नेज़े पर आज कुरान पढ़कर बता रहा है कि कुरान पढ़ने वाले, सच्चाई के साथ में खड़े रहने वाले, जालिम के आगे न झुकने वाले, तलवार अगर गर्दन पे चला भी दे तब भी उनके सर झुकते नहीं है। ज़ैनब ने जब देखा है तो फरमाती है कि मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, मेरा खालिक उसे पैदा नहीं होने देगा। और देख कर नेज़े पे सर हजरत ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आला इमाम हुसैन, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। मेरा हुसैन जो करबला में गया था तब भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है। करबला में शहादत के बाद नेज़े पर भी बुलंद था और आज भी बुलंद है। जब भी उसे पुकारो मदद के लिए मेरे हुसैन आएंगे जरूर। कह दो जहां इंशाअल्लाह आएंगे जरूर। मेरे हुसैन बुलाओ वो आएंगे जरूर। वो ऐसे नहीं कह रहा, उलमा इकराम की ज़बानी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप पूछिएगा कि कभी कोई बुलाया था आपके ही बहुत करीब से, शहर बनारस से किसी ने बुलाया था। अल्लामा अरशदुल क़ादरी नव्वरल्लाहु मरकज़हू लिखते हैं कि जब एक सुनार की बेटी ने आवाज़ दिया था जंगल से तो इमाम हुसैन पहुंचे थे उसकी मदद के लिए। वही सुंदरलाल की बीवी ने जब बुलाया था, अरे हुसैन मैं जानती नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो, किसके बेटे हो, बस इतना जानती हूँ कि तुम शहादत के बाद अब भी जिंदा हो, मेरी मदद करो। तो उसके घर इमाम हुसैन पहुंचे थे। इमाम हुसैन का आना मुश्किल नहीं है। जो हुसैन इन तमाम तर शहरों पर पहुंचकर लोगों की मदद करता है, उस हुसैन को अगर आज भी आप भी बुलाएंगे तो मेरा हुसैन आएगा। उसका आना मुश्किल नहीं है, बस आपके बुलाने का अंदाज सही होना चाहिए। लिहाजा आए लोगों, जब भी आपको मौका मिले इमाम हुसैन के नाम पर यूं ही खर्च करते रहो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम को ही इमाम हुसैन का नाम तस्करा करो। शायद लिखा रुलाते आती है या रुलाने आती है, याद हुसैन रोज हमें, हम वो नहीं कि मुहर्रम का इंतजार करें। हमें जब मौका मिले तब हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे, मजलिसें सजाएं और जो मना करते हैं उनके कहने पर ना आए, बल्कि आप यूं ही मनाते रहें, यूं ही चर्चा इमाम हुसैन का करते रहें। क्योंकि रोकने वाले बहुत पहले से रोक रहे हैं और रोकते रहेंगे, और रोका गया है और रोक रहे हैं, रोकते रहेंगे। लेकिन जो पहले मना, जो इनसे मोहब्बत पहले कर रहे थे वो अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर आप देखें एक पन्ने को पलट कर तो आपको याद आएगा एक वक्त था जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। जी हाँ, शीटी लेकर लाने गए, लाए, बस फौरन मैं खत्म कर देता हूँ, बड़ी थोड़ी सी तवज्जो दे दे, आखिरी 2-3 मिनट सुन ले आप बड़ी तेजी के साथ। जो मना करते हैं उन्हें मना करने दीजिए, जो रोक रहे हैं रोकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले से कर रहे हैं। अगर तारीख के पन्नों को पलटे हैं उलमा के ज़बानी पूछे तो बहुत पीछे आपको ये ले जाएंगे। ये उस वक्त ले जाएंगे जब दुनिया में कोई आदमी आया न था, आदम का पुतला भी नहीं बना था, तब रब ने कहा था ऐ फरिश्तों को मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा था पाक परवरदिगार आलम क्यों बनाएगा, ये जाकर खून बहाएंगे, ये चोरी करेंगे, बुराई करेंगे। फिर अल्लाह ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून। आपने सुना होगा इस इन वाक़यात को कि जो मैं जानता हूँ। जी बोलिए माशाअल्लाह। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और मुख्तसर मिट्टी लाकर पुतला तैयार किया गया, फिर कहा गया सजदा करो, सब ने किया लेकिन एक ने नहीं किया, नाम आप जानते होंगे। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, अकड़ा तो अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया, निकाला गया। निकलने लगा तो उसने पलट कर कहा था कि ऐ पाक परवरदिगार आलम अब तू जन्नत से निकाल ही रहा है, एक आदमी की ताज़ीम ना करने की वजह से, इज्जत ना करने की वजह से, तो क्या मैं कुछ तुझसे ले सकता हूँ मुआवजे में, बदले में क्या मैं तुझसे कुछ तलब कर सकता हूँ? कि फिर अल्लाह फरमाता है बोल तू चाहता क्या है? उसने कहा ए पाक परवरदिगार आलम मैं फरिश्तों का उस्ताद हूँ, मैंने तेरे सजदे किए हैं, तेरी तस्बीह बयान की है पाक परवरदिगार आलम, इसके बदले में जब तू मुझे निकाल ही रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मेहनताना दे दे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तेरी जन्नत से निकल जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, लेकिन मुझे मेरा मेहनताना दे दे जो मैंने अब तक किया है, तेरी तस्बीह जो बयान की है, तेरे सजदे जो किए हैं उसका मुझे मेहनताना
नजराना दे, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है बोल चाहिए क्या? उसने कहा जो मैंने तेरी तस्बीह बयान की है उसके बदले में तू मुझे लंबी उम्र दे दे, जो मैंने तेरे सजदे किए हैं उसके बदले में तू मुझे चेहरा बदलने का हुनर दे दे। जब मैं चाहूँ लड़का बनूं, जब मैं चाहूँ लड़की बनूं, जब मैं चाहूँ आदमी बनूं, जब मैं चाहूँ औरत बनूं, बूढ़ा बनूं, जवान बनूं। वो कहने लगा मुझे चेहरा बदलने का हुनर दे दे। अल्लाह फरमाता है जा, मैंने तुझे दे दिया, लंबी उम्र भी दे दी, चेहरा बदलने का हुनर भी दे दिया। मेरे महबूब के चेहरे को छोड़कर तू जैसा चाहे चेहरा अख्तियार कर सकता है। जब वो इन दोनों को पा गया तो हंसने लगा, ठट्ठे मारने लगा, खुशी मनाने लगा और फिर कहने लगा अब मैं चुनकर इससे हिसाब लूंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं श्रावस्ती से चलकर और यहाँ तक आया हूँ, तकरीबन 45 से 50 मिनट मुझे लगे हैं और रास्ते में बड़ी सारी टीमें मिली हैं। रास्ते में मुझे 10-10, 20-20, 25-25 लोगों के तादाद में लोग जा रहे थे, ताशे के साथ, ढोल के साथ भी मिले हैं रास्ते में। मान लो अगर मैं यहाँ से निकलूँ अभी और थोड़ी दूर जाने के बाद कहीं मुझे पकड़ ले कोई और कहे मौलाना कहाँ गए थे, जो नजराना मिला निकालो, साथ में मोबाइल भी देकर जाना, तो क्या करूँगा? अकेला आया हूँ, साथ में एक और बेचारे हैं कमजोर हैं, वो भी साथ में आए हैं। वो यही कहूँगा लो भाई मोबाइल ले लो, जो कुछ मिला है वो भी ले लो, जाने दो। लेकिन जब बाइक स्टार्ट कर लूंगा यानी आगे बढ़ जाऊंगा तब मुड़कर कहूंगा कि बेटा आज विशेश्वरगंज की धरती की तरफ तुम मिले हो, तब मुझसे सब कुछ छीन लियो, ठीक है। कभी अगर तुम वीरपुर के आगे मिलोगे तब बताऊंगा, चुनकर हिसाब लूंगा शायद अपनी भड़ास निकालने के लिए, और मैं बोलकर आगे बढ़कर तेजी से चला जाऊं। कुछ ऐसा ही इब्लीस ने भी कहा था। खुदा जिसकी इज्जत ना करने की वजह से तू मुझे निकाल रहा है, भेज इन्हें जमीन पर, मैं इनसे चुन चुन के हिसाब लूंगा। फिर इन्हें तेरा करीबी बंदा मैं बनने नहीं दूंगा, मैं तेरा करीबी बंदा इनको बनने नहीं दूंगा, क्योंकि आदमी की ताज़ीम न करने की वजह से तूने मुझे निकाला है। अल-मुख्तसर ये कि बारगाह इज़्ज़त से जवाब मिला है इब्लीस देख देख, आज जब तूने बगावत की तो मैंने तुझे मरदूद करार दिया और अपने आदम को बुलंद कर दिया। फरिश्ते उनके सजदे में आ गए हैं, फरिश्ते उनको सजदा कर रहे हैं। आए इब्लीस जा तू जमीन पर भी जाएगा, लोगों को बहकाने की कोशिश करेगा। जब तू बहकाने की कोशिश करेगा तब बचाने के लिए मैं किसी न किसी को जमीन पे उतारता रहूंगा। इब्लीस ने कुछ यूं कहा था कि कैसे बचाएगा इनको, मैं तो चेहरा बदलने का हुनर जान गया हूं, अब मैं चेहरा बदल कर जाऊंगा, मुझे पहचान नहीं पाएंगे, मुझसे धोखा खा जाएंगे, फिर बचेंगे कैसे? जब जाऊंगा नए चेहरे के साथ जाऊंगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, धोखे खाएंगे और बहकावे में मेरे आ जाएंगे। अल्लाह ने कुछ यूं कहा होगा ऐ इब्लीस देख आज जब तू फरिश्तों के जमात से निकल कर आज जब तूने इनकार किया तो तुझे मैंने मरदूद करार दिया। कल जब तू जमीन पर जाकर लोगों को बहकाने के लिए जमीन पर फिरौन बनकर जाएगा तो तेरे मुकाबले में मैं मूसा को पैदा कर दूंगा, मेरा मूसा तेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। आज आदम खड़ा हुआ है, कल मेरा मूसा खड़ा होगा। जब तू दुनिया में नमरूद बनकर जाएगा तेरे मुकाबले में मैं इब्राहिम को खड़ा कर दूंगा। जब हिंदुस्तान की जमीन पर तू पृथ्वी राज बनकर जाएगा और लोगों को बहकाएगा तेरे मुकाबले में मैं गरीब नवाज को पैदा कर दूंगा। पहलाज की धरती पर जब तू शहर बनकर लोगों पर सिर उठाएगा तब तेरे मुकाबले में मैं मसूद गाजी को पैदा कर दूंगा। जब तू करबला में मज़हब इस्लाम में नाजायज चीजें डालने की कोशिश करेगा, नापाक कोशिशें करेगा तो तेरे मुकाबले में मैं अपने नबी के नवासे हुसैन को खड़ा कर दूंगा। जब तू इन तमाम चीजों को रोकने के लिए कहीं कहेगा इमाम हुसैन के नाम पर सबील न पिलाओ, इमाम हुसैन के नाम पर ये जलसा न करो, इमाम हुसैन को एहसान न करो, मजलिस न करो, वहां भी देवबंदी बनकर जब लोगों को बहकाएगा तो तेरे मुकाबले में मैं बरेली के सौदागरान मोहल्ले में अहमद रजा खान कलम से यूं फलवा देगा, पूरी दुनिया पुकार कर कहेगी वादी रजा की क्यों है, वादा रजा का है, जिस संत देख वो इलाका रजा का है। फिर इब्लीस ने कुछ यूं कहा होगा ऐ पाक परवरदिगार आलम, हाँ ठीक है, जब मैं चेहरा बदल कर जाऊंगा लोग पहचानेंगे, फिरौन बनकर जाऊंगा तो मूसा को पैदा करेगा, नमरूद बन के जाऊंगा तो इब्राहिम को पैदा करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि चेहरा ऐसे बदलूंगा कि लोग जान भी नहीं पाएंगे। इमाम हुसैन की महफिल में बैठकर शीरनी भी खाऊंगा, शरबत भी पीऊंगा, महफिल में शामिल होकर सलाम भी पढ़ूंगा, लेकिन जब जाकर चौराहे पर पहुंचूंगा अपनों के बीच में तब कहूंगा मैं तो गुरचाही वालों का मजाक उड़ाने गया था। मैं जाकर कहूंगा कि वो सुन्नी हजरात, वो अहले
सुन्नत के मानने वाले या हुसैन कह रहे थे। मैं उनके नाम को चिढ़ाने के लिए गया था, उनका मजाक बनाने के लिए गया था। आए पाक परवरदिगार आलम, एक दौर ऐसा आएगा कि मैं इब्लीस सुलह कुल्ली के भेष में, सुलह कुल्ली के लिबादे को ओढ़कर उनके बीच में जाऊंगा, खाऊंगा शीरनी को भी, साथ में खड़ा भी रहूंगा। लोग मुझे अपना समझेंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरा और मैं उनका मजाक बनाऊंगा। जब लोग पहचान नहीं पाएंगे तो मुकाबला मुझसे कैसे करेंगे? अपना भाई समझेंगे, अपना यार समझेंगे, अपना रहनुमा समझेंगे, अपना रहबर समझेंगे, वो मुझे अपना समझेंगे, पहचान नहीं पाएंगे, धोखा खा जाएंगे। बारगाह यज़्दी से शायद कुछ यूं जवाब मिला होगा, ऐ इब्लीस तू बहुत खुश ना हो, जब वहाबी बनकर जाएगा तो अहमद रजा को भेजूंगा, जब खुलकर सामने आएगा पृथ्वीराज बनकर तब मैं गरीब नवाज को भेजूंगा। लेकिन जब तू सुलह कुल्ली के लिबादे को ओढ़कर सामने खड़ा होगा और कहेगा कि मैं शरबत पीऊंगा लेकिन ये नाजायज है, ये जलसा करूंगा लेकिन ये गलत है, हुसैन को ना बुलाओ, वो सुनेंगे नहीं, और अपनी महफिलों में जाएगा और ऐलान करेगा मजाक उड़ाने के लिए गया था। तब इसकी पहचान करने के लिए मैं उसी बरेली में, उसी अहमद रजा के खानदान में एक ऐसे आलिम को पैदा करूंगा, दुनिया जिसे अख्तर रजा खान अलमारी शरिया कहेगी। और शरिया कौन अपना है कौन बेगाना है सबको पहचान कर अलग कर देगा। अब वहां पर जब तेरी दाल न गलेगी तब उलमाए अहले सुन्नत मिंबर नूर पर खड़े होकर ऐलान करेंगे कि मेरा सुलह कुल्ली बोल लियो, भागना होगा मेरा ताज शरियात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माशाअल्लाह। बहुत खुश ना हो तेरी पहचान करने के लिए उस वक्त भी मैं किसी न किसी को भेजूंगा जो मेरे अच्छे बंदे हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे महबूब के खानदान से मोहब्बत करने वाले। ऐसा कि अभी इमाम साहब बता रहे थे कि अहले बैत की क़ुराबत अख्तियार करें, अपने इतने पाक से मोहब्बत करें। जो मोहब्बत करने वाले रहेंगे उनको मैं बचाने के लिए भी किसी न किसी को भेजता रहूंगा और वो बचते रहेंगे और यूं ही उनका तस्करा करते रहेंगे। लिहाजा आप हजरात यूं ही इमाम हुसैन के नाम पर जश्न करते रहें, अल्लाह के एक बंदों का तस्करा करते रहें। इससे होता यह है कि दिल में खौफ और अल्लाह वाला की मोहब्बत बढ़ती है। इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा क्योंकि आज टाइम मुझसे भी ज़्यादा हो गया है तो इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।